अंधकार से उजाले का सफ़र तय करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना अति आवश्यक है। तो आइए हम भी दीप प्रज्वलित करें, विद्या एवं कला की देवी माँ सरस्वती का आवाहन करें, उनकी वंदना करें और कार्यक्रम की शुरुआत करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। आइए अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो स्पीकर्स हैं वो मंच पे विराजमान हो जाए। राजश्री शेट्टी जी, प्रोफेसर सुरेश भारद्वाज जी, प्रिंसिपल क्लारस कॉलेज मधुकर गिट्टे जी और बिग बैंग थिएटर्स फाउंडेशन के फाउंडर आकाश दत्तलामा जी। मैं चाहूँगा कि क्लारस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मधुकर गिट्टे जी, प्रोफेसर सुरेश भारद्वाज जी का स्वागत करें। राजश्री शेट्टी जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा IQAC की कोऑर्डिनेटर बबीता कनौजिया जी। मैं समय हूँ, जब ये आवाज़ गुंजायमान होती थी, आप लोगों को याद है महाभारत सीरियल में शंखनाद के बाद तो समय वहीं रुक जाता था, सब अपने घरों में पहुँच जाते थे इस आवाज़ को सुनने के लिए और उस सीरियल को देखने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच उसी समय को आवाज़ देने वाले हरीश भिमानी जी, जो अब डीलिट से सम्मानित हो चुके हैं, डॉक्टर हरीश भिमानी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले तो हम इनका सम्मान करते हैं। असल में आपका सम्मान इसलिए मैंने पहले कराया है क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं मधुकर गिट्टे जी का सम्मान करें। इन्होंने तो आपको अपने घर में सम्मान दिया है। अब मैं चाहूँगा कि आकाश दत्तलामा जी का स्वागत जो है वो हमारे पास नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित विनोद गनाता जी बैठे हैं। तो विनोद गनाता जी आइए। He has won National Film Award twice for his films. See, it is believed that the whole universe has been created in a Big Bang. Similarly, in 2011, Akash Duttalama and his friends formed Big Bang Theatres Foundation to create new waves in the field of art and culture. The objectives of this group were very simple: to promote Indian art and culture, especially all performing arts all over the world, create awareness about Indian art and culture, especially among the youth, popularize theatre and performing art among every section of society, especially among the financially and socially backward section of the society. To do new experiments in the field of performing arts, create platform for new talents, and true to its name, the Big Bang Theatre Group did actually start with a very big bang in its debut attempt by basically doing the play Mohenjo-daro. If you are aware, there is nothing written about Mohenjo-daro in our history books. So to create the civilization and the characters was really very tough.
which the Big Bang Theatre Foundation did it pretty very well. And not only that, due to this play was shown across different festivals like Kalidas Samaroh, Nadika Theatre Festival, Jashn Malwa, Sutradhar Theatre Festival, Multilingual Theatre Festival, and many more. Later on, they basically play Krishna on the life and teachings of God Krishna. In 2015 and 16, the foundation launched 2 new plays, Jashn-e-Eid, based on Munshi Premchand's famous Eidgah, and Ala Afsar by the playwright Mudra Rakshas. In 2017, Big Bang Theatre Foundation launched 3 new plays named Sakar Hota Sapna, Natak Nahi, and Marathi play Teesri Ghanta, and the shows of that have been going on continuously. In 2019, Big Bang Theatres Foundation organized a seminar on भारतीय लोक गीतों का नाटक एवं सिनेमा पर प्रभाव, with eminent speakers like Dr. Harish Bhimani ji, Srimati Rajshri Shirke ji, Ratan Sharda ji, Shri Prashant Sisodia ji of NDTV, and Deepak Tichori, the actor you must be doing very well. And these shows of all his plays continue. Apart from this Big Bang production, they encourage other cultural activities like folk songs, folk dances across India. And you see, the greatest thing is this: the art is traditional, but to keep the actors alive, and the zeal in the actors alive during the last 2 years of lockdown, they did an online play, Shabri Ka Mohan, which was a totally new experiment and very, very much appreciated. Because if you know very well, the theatres were closed and everything. So this has been their long and short journey, which has been recognized very well by all the different states across in India and abroad. We have among us the principal of the B.Ed College. Please, ma'am, you are welcome. डॉक्टर रत्न प्रभा राजमने जी, आइए तो हम इनका भी स्वागत साथ में करते ही चलते हैं। तो अपना हाँ, अंकिता तिवारी जी कहाँ गई? द जनरल सेक्रेटरी ऑफ बिग बैंग। नीचे शी नॉट हियर। अच्छा, प्रमोद पवार जी को रिसीव करने गए। तो मेरे ख्याल से सुभाष सहगल जी, हमने महाभारत की बात की तो रामायण के जो एडिटर थे, और उसके अलावा न जाने कितनी 15 से 20 फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की है, और इसके अलावा इनकी 15 किताबें छप चुकी हैं, निरंतर लिख रहे हैं। तो ये स्वागत करेंगे डॉक्टर रत्न प्रभा राजमने जी का। सुभाष सहगल जी का सफ़र भी बहुत निराला रहा है कि एडिटर थे ये, कैंची से शुरू हुआ, रामायण के सारे एपिसोड जिन्होंने एडिट किए तो न जाने कितने सारे सीरियल, और अब ये लेखक हो गए हैं। उनकी 15 किताबें छप चुकी हैं। मतलब कहाँ कैंची से कलम का सफ़र जो है वो बड़ा निराला है। नाउ कमिंग टू दी premises where this taking place along with Big Bang Theatre Foundation, that is Clara College of Commerce. This was established in the year 1999 in the memory of late Srimati Clara Kaul, an eminent educationist who had a missionary zeal to take learning to every strata of society. Mr. Ajay Kaul, the trustee, made the college fully equipped with state-of-the-art facilities and well-qualified teachers. The college is permanently affiliated to University of Mumbai and NEC accredited. The aim of the college is to continuously enhance the teaching methods in order to provide students with an opportunity for their all-round development. It also strives for excellence in academics and makes an effort to induce passion for learning along with the inspiration for decision making, thinking and assessment, thereby helping them to become the best professionals in the chosen career. And the best example of that is this, that today you can find all professionals coming here. So the college has
proven track record of excellent academic results over the years, along with coveted awards and prizes at different levels. And this indeed has made the college stand with pride in the field of education. Now we proceed further. The principal of this college, Dr. Madhukar Gitte, he is MA, MPhil, PhD with teaching experience of over 38 years. From 1980 to 1990, he was lecturer in economics. Then from 1990 to 2007, assistant professor in RI College, Yogeshwari. 2007 to 18, associate professor in Elphinstone College, Fort Mumbai. And from 2018 till date, he's basically the principal here. And Dr. Gitte has published 13 research papers. And his published book, Theory of Value, is very, very famous. He has worked on selection and SAS committee. So I would invite respected principal sir to give the welcome address. Please, sir. On behalf of Clara College of Commerce, I welcome all the dignitaries on the dais, all the delegates, my students, teaching and non-teaching colleagues. This is one day seminar on the contribution of scriptures in acting या अभिनय में शास्त्रों की भूमिका. Now our speaker, there are 3 speakers, and they are well-known personalities in their fields. Our first speaker is Professor Suresh Bhardwaj. He is a National Sangeet Academy awardee and also Indian Theatre, Film and Television Director. The second speaker is Srimati Rajeshri Shirke Madam. She is also National Sangeet Natak Academy awardee. She is also an Indian classical dancer. Then our third speaker, Sri Pramod Pawarji. He is renowned theatre and film personality. He is a well-known actor, director in Marathi theatre. He has also worked in Hindi films. Then Akshay Aditya Lama, who is the president of Big Bang Theatre Foundation. He is also a writer, director and theatre personality. Then our principal of B.Ed College, Ratnaprabha Rajmani Madam, is on the dais. And last but not least, Sri Chetan Mathur sir, who is not only professor but writer, script writer, director and producer of films. Now, basically, Abhinay and Shastro, yeah, scriptures. What is the Abhinay? What is the acting? You see, acting is the art of practice representing a character on the stage or before a camera. It means that acting is the art, or it may be profession or occupation of performing fictional roles in plays, cinemas, maybe TVs or in serials. Now what is the importance of Abhinay? Yeah, acting. First of all, entertainment or the manoranjan of the audience. The second one is it gives pleasure to the actor or actress as well as to the audience. Third one, it gives some social message to the society, and as a profession or occupation can be selected by an actor or some other personality. Now, scriptures are the ancient literature, mostly in Sanskrit. These are the epics, and Vedas, 4 Vedas, Ramayana, Mahabharata, then Kautilya's Arthashastra, again in both the books also, and in Patanjali's book there were the mention about the
theater, natak, drama, and some other things. Now, in the Sanskrit, there were so many dramas or nataks, and Bharat Muni is the founder of this Natya Shastra, and the dance is known as a Bharatnatyam. Kalidas, Bhauti, then Bhas, Shudra, Vishakha, that written Mudra Rakshak, and Harshavardhan are the famous play writers in Sanskrit. Now there are certain classical dances like Bharatnatyam, Kuchipudi, Kathakali, maybe Odissi or Manipuri, in which there is action of maybe body, maybe hands, maybe eye, maybe mouth, maybe some other things. This is nothing but this is acting. Bharat Muni in his Natya Shastra has mentioned 4 types of abhinay or acting. The first one is Angik abhinay. It is related with our body. Sharirik, शरीर, अपना मुंह, हाथ, पेटी, सीन, चरण इत्यादि द्वारा किए जाने वाला अभिनय अंगिक अभिनय है। इसमें से भी आँख, कपाल, ये भौहें और इसके साथ भी अभिनय किया जाता है, उसे वांग बोलते हैं। देन सात्विक अभिनय जो है वो सात्विक अभिनय के अंतर्गत श्वेत, स्तंभ, कम, अश्रु, वैवर्णिक, रोमांच, स्वर, रंग और प्रलय के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। वाचिक अभिनय वो जो मुंह से हम डायलॉग जो बोलते हैं, सीरियल्स में, नाटक में हम जो डायलॉग बोलते हैं, साइड वो वाचिक अभिनय है। और आहार अभिनय ये इट इज रिलेटेड विद नेपथ्य इन वेस्टर्न कंट्रीज, in England, France, Italy, and then Yunnan, there was the development of drama. We know the Shakespeare, who has written so many famous dramas, plays like Hamlet, The Merchant of Venice, etc. In case of this Western, there are 5 types of acting. The first one is रूढ़िवादी या फार्मलिस्ट, सेकंड वन प्रकृतिवादी या नेचुरलिस्ट, थर्ड वन अभिव्यंजनादि या अतिरंजित अभिनय, इट इज एक्सेप्शनिस्ट, देन घनवादी या संतुलित अभिनय, इट इज क्यूबिस्ट, एंड प्रतीकवादी अभिनय जो मुख और इसके द्वारा किया जाता है। प्रतीकवादी अभिनय कैसा किया जाता है कि सपोज कोई लंगड़ा आदमी है, कोई दारू पीने वाला है, कोई बूढ़ा है, तो उसका जो प्रतीकात्मक अभिनय किया जाता है वो प्रतीकात्मक अभिनय होता है। तो एट द एंड आई एम वंस अगेन grateful to all the speakers, Vishnu Prasad, Chetan Mathur sir, all the dignitaries, then my students, delegates, my teaching and non-teaching staff. Thanks. अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे पहले स्पीकर आ चुके हैं। श्री प्रमोद पवार जी is a very well-known actor, director in Marathi language, and he's also worked in various Hindi films. He has served as a member of many theatre societies in India. He has also worked in many notable one-act plays as well as Marathi professional theatre. He has won Best Actor and Best Director award for his work Uthwa, Kahu, Stranger, Anamik,
Ars Motanami, etc. He has also received the Best Actor Award for film Aghat by Government of Maharashtra and Shivaji Ganeshan Award and other notable honors. In Tilak and Agarkar, he played the role of Tilak. In Arya Chanakya, he played Chanakya's role, which were honored by numerous awards. He has performed in more than 6,000 stage performances. So we give a big round of applause to him. And thus, I will request Shri Pramod Pawar ji to come and enlighten us. हम शास्त्र के ऊपर बात करते हैं या स्कूल में जाते जाते शास्त्र पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं इमीडिएट अपने वक्तव्य को शुरुआत कर देता हूँ, बाकी कुछ बातें नहीं करें। शुरू से हमने नाटक में काम करना शुरू कर दिया, तभी की बात है। आप जैसे विद्यार्थियों के लिए अभी जो क्लासेस चलते हैं या आपको लेक्चर देने के लिए यहाँ माननीय व्यक्तियाँ आती है, वो अपना अनुभव शेयर करती है। तो उस वक्त हमारे डायरेक्टर जो रहते थे प्ले के, वही हमारे सब कुछ थे, उन्हें सब कुछ पता होता था। स्कूल्स नहीं थे ड्रामा के या और कुछ नहीं था। जब रिहर्सल होती थी तभी हमारा शिक्षण वहीं से शुरू हो जाता था। लेकिन उसके बाद जब हम आगे चलते गए तब हमें पता चला कि हमें क्या कमियां हैं। हमें हमारी कमियां दिखाने वाले मार्गदर्शक चाहिए और वो हमें मिलते रहे। जब हम थिएटर के बारे में सोचते हैं तो मुझे ये लगता है कि आप थिएटर करो या ना करो, थिएटर स्टेपिंग स्टोन है, देन बाद में आप सीरियल्स, फिल्म, ऐसे ही आपके दिमाग में वो सोच है। मुझे ऐसे ही तब जब तो भरत नाम की एक कम्युनिटी थी, तो भरत शास्त्र लिखने वाला एक ही नहीं था, उसके बाद में बहुत सारे भरत हो गए। तो उन्होंने डे बाय डे इम्प्लीमेंटेशन होता है, कुछ नई खोज होती है, वैसे ही इसी में बहुत कुछ ऐड होते गया, क्योंकि कुछ कमियां रहती थी, कुछ गलतियां थी, कुछ अच्छा है, वो हम इन्वॉल्व करते गए हैं। और इतने सालों से वो चल रहा है यदि, और हिंदू तत्वज्ञान से हम जुड़ेंगे तो हमें पता चलता है भरत शास्त्र क्या है, रंगमंच का अवकाश क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सभी उस वक्त लिखा है उन्होंने। और यदि वो लिखा हुआ है तो कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में जर्मनी, फ्रेंच, यहाँ जाके उन्होंने स्टडी किया और उसी का इम्प्लीमेंटेशन तब शुरू हुआ था। अंग्रेजों का थिएटर जो है वो अपने हिसाब से चल ही रहा था, लेकिन हमें शास्त्र जो पढ़ाया गया तब मुझे पता चला। मैंने हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हरीश बेमानी जी, जिनकी आवाज़ सुन के हम आगे बढ़ते गए। मैं फॉलो करता हूँ सर आपको हरीश जी। और जब रामायण लगते थे तब पहले आपको सुनना था, बाद में बाकी सब। लेकिन वो जो है, पहली बात जो कहनी है वो ये है कि हम पहले देखते हैं, बाद में सुनते हैं। वो सुनने के लिए हमें भूलना जरूरी है, और यदि वो भूलना जरूरी है तो किस तरह से बात करें, किस तरीके से हम डिलीवर करें, उसका भी एक शास्त्र है। मैंने अभी आपने मेरा थोड़ा सा परिचय जो सुना आपने, उसमें लोकमान्य तिलक या चाणक्य ऐसी व्यक्ति रेखाएं मैंने की। तो वो व्यक्ति रेखाएं करते वक्त मुझे जो स्टडी करनी थी वो मैंने की। मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ ली, क्या क्या नहीं पढ़ा, लेकिन वो पढ़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरी व्यक्ति रेखा उसी के ऊपर ही निर्भर रहती है। तो मैंने पढ़ना ज़रूरी था, तो वो मैंने पढ़ा, अपने जहन में बिठा लिया उसको। और वो करने के बाद डिलीवरी क्या है, क्यों ऐसा बोले, ये मैं खुद को क्वेश्चन करता रहा। कैरेक्टर्स हमारे
इर्द गिर्द भरे हुए हैं। मैं आजकल के बच्चों के लिए छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आपकी नज़र आजकल ऊपर नहीं रहती। अब कांट अवॉइड इट बिकॉज ऑफ मैं यहाँ हूँ, आपके प्रिंसिपल्स और बाकी सब आपको भी देख रहे हैं, इसीलिए आपका स्मार्टफोन बाजू में रख के आप मेरी तरफ देख रहे हैं। लेकिन आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो स्मार्टफोन पे ही रहोगे, तो वो आपकी नज़र यहाँ पे है, सामने नहीं है। जो आपसे बात कर रहा है उससे भी आप नज़र मिला के बात नहीं कर सकते। तो वो स्थित्यंतर होते आया है बहुत सालों के बाद, उसकी शिकार आप लोग हैं। तो आपको जज करना चाहिए आपके सामने कौन है, कैसे बर्ताव कर रहा है, क्या कर। मैं जब ट्रेन से सफ़र करता हूँ या बस से सफ़र करता हूँ तो मुझे पहचानने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन आप बस से क्यों सफ़र करते हो, कार से क्यों नहीं आते? क्यों? मैं आदमी हूँ, मुझे आदमी को पढ़ना है, मुझे मेरे कैरेक्टर्स को पढ़ना है, तो इसलिए मैं घूमते रहता हूँ। ट्रेन में मैंने एक आदमी को देखा, वो कुछ नहीं कर रहा था, वो अपने अंदर ही अंदर बॉस को गाली देता होगा, नहीं तो बीवी से झगड़ा हो गया होगा, और वो अंदर ही अंदर से उससे बात कर रहा है, उसको गाली दे रहा है या कुछ कर रहा है। तो वो बाकी लोगों को नहीं देख रहा है, उसका वही चल। और उसे पता चला कि भाई किसी ने मुझे देखा है, तो वो उस वक्त के लिए शांत रहता था। बाद में फिर से वो शुरू होता, वो लूप फिर से शुरू हो जाता है। तो ये होता है, हमें लोगों को देखना चाहिए। ट्राई टू, आजकल के बच्चों को वो ब्लॉटिंग पेपर पता नहीं। जब स्याही के पेन थे तब स्याही ज़्यादा आती थी, तो वो ब्लॉटिंग पेपर से हम निकलवा लेते थे। तो वो ब्लॉटिंग पेपर जो है ना, वो हमारे अंदर है, वो उससे जो अच्छा है, जो अच्छा है वो ब्लॉटिंग पेपर से पकड़ना चाहिए, साफ करना चाहिए, और हमें वो अपने जहन में बिठा देना चाहिए। तो मैं चाणक्य की जब बात कर रहा था, तब चाणक्य के लिए मैं एक ऐसा छोटा सा डायलॉग है। कोई आके कहता है कि आप अपनी चोटी बांध दो, तो उसका ये डायलॉग है कि भाई मराठी में बोल देता हूँ क्योंकि वो मराठी में किया था। कोण म्हणतं मी, आप सभी को पता चलेगा, शायद नहीं पता चलेगा तो मुझे हाथ रेस करके मुझे पूछो। कोण म्हणतं मी शिखाबंधन, ये शिखा आहे, शिखाबंधनाचं कार्य पूर्ण करावं म्हणून। कोण म्हणतं मी शिखाबंधनाचं कार्य पूर्ण करावं म्हणून। चाणक्यची शिखा म्हणजे केवळ 4 केसांची बट नव्हे, सिर्फ 4 बाल नहीं है, मैंने कुछ प्रण किया और उस प्रण के वजह से मैंने ये छोड़ दिया और मेरा प्रण अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये उसका कहना है। तो यदि कोण म्हणतं मी 4 के, कोण म्हणतं मी शिखाबंधनाचं कार्य पूर्ण करावं, ये हो सकता है? नहीं। अगेन पीरियड, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, पीरियड क्या है, टाइमिंग क्या है, इस सभी का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पीरियड है 2000 साल पहले का, तो उस हिसाब से आएगा, क्योंकि हमने देखा नहीं है, किसी ने तो बताया होगा और वो चलते चलते आ रहा है। अब शिवाजी महाराज है, तो शिवाजी महाराज भी हमने नहीं देखे कि, लेकिन 400-500 साल पहले की बात है, किसी ने तो देखा होगा, उस कैसे चलते थे, कैसे दिखते थे, ये किसी ने तो बताया है, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। वो जो कैरी फॉरवर्ड होना है, तो उसी की वजह से हमने वो उसको बताना शुरू कर दिया, शिवाजी ऐसे हैं, शिवाजी या चाणक्य ऐसे हैं। तो चाणक्य, तो क्या मैं ये बोलूं, कोण म्हणतं मी शिखाबंधनाचं कार्य पूर्ण करणार, एक सीधी बात है। तो किसी ने आके बता, मैं ऐसे बोलूं, कोण म्हणतं मी शिखाबंधनाचं कार्य पूर्ण करावं, कौन है तो? ये नहीं हो सकता। मेरी आवाज आ रही है?
गोड म्हणतं मी शिखाबंधनाचं कार्य पूर्ण करावं. मैंने अपने गले का, पेट का, जो सांस ले रहा हूँ, सभी का इस्तेमाल करके मैंने अपनी आवाज को चेंज करना शुरू कर दिया, स्टांस बदल दिया. ये स्टांस बदलना भी कैरेक्टर के हिसाब से बहुत जरूरी है. गोड म्हणतं मी शिखाबंधनाचं कार्य पूर्ण करावं, ये मैंने अभी ये बता दिया. लेकिन जो शास्त्र है, जो मैं कह रहा हूँ, उसको सपोर्ट मुझे अपने फेस से भी देना है ना. तो ये एक्सप्रेशंस करेक्ट आएंगे और मैं आगे बढ़ सकता हूँ. गोड म्हणतं मी शिखाबंधनाचं कार्य पूर्ण करावं. चाणक्याची शिखा म्हणजे केवळ 4 केसांची ओढ नव्हे, ही आहे सुराची जळती ज्योत. माझ्या महत्वाकांक्षेनुसार वागणारी साक्षात अग्नी नारायणाचे मानस घडते. व्यासाची प्रतिभाच्या पराक्रमाचं वर्णन करू शकेल अशी ही माझी शिखा. ये इसमें क्या क्या अभिनीत करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा. जैसे मेरा सांस का कंट्रोल, बाद में एक्सप्रेशंस है, वो है, उस हिसाब से मुझे वो आगे लेके जाना पड़ा. अब आप सभी को, बच्चों को जो काम करना है वो अपनी सांस पर, अपनी आवाज पर और एक्सप्रेशंस पर, ये यदि हो जाएगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन उसका शास्त्र है. मैंने 26-27 साल तक मैंने कोई क्लासेस वगैरह कुछ नहीं किए थे. लेकिन अचानक से पुल देशपांडे और अशोक जी रानड़े, उन्होंने NCPA में एक वर्कशॉप किया था 10 दिन का, पूरे 10 दिन का. तो उस वर्कशॉप में मैंने जो भी कुछ सुना, पढ़ा, समझा, उससे मेरी जीवन में और आमूलाग्र बदल हुई. क्योंकि अपने अशोक जी रानड़े जो थे, वो तो माने संगीत के माहिर थे और संगीत से हम अपने बोलने पर क्या क्या परिणाम कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा अध्ययन उनका था और उन्होंने बताया भी उसी तरीके से. पुल देशपांडे तो आप सब जानते हैं या नहीं मालूम नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे पूछते हैं हु इज पुल और हु इज PL. तो बात अलग है. यू कैन जस्ट गो ऑन योर गूगल फ्रेंड, आस्क हिम हु इज पुल, पता चलेगा. स्टैंड अप कॉमेडी क्या आज जो देखते हैं आप या सुनते हैं, उसके परे थे वो, उसके माहिर थे. तो पुल देशपांडे इज लाइक दैट. तो मैंने वहाँ से जो भी कुछ समझा और आपको देने वाला वो वही है कि हम बात करना समझ जाना चाहिए. कैसे बात करें, किससे बात कर रहे हैं. नहीं तो हम, किसी ने हमें गाली दी तो हमें तकलीफ होती है. गाली दी तो तकलीफ होती है ना, बिना वजह किसी ने गाली दी तो इसका मतलब शब्दों का अपने ऊपर कुछ असर होता है. अच्छा कहे तो अच्छा लगता है या अच्छा होता है. इसीलिए संस्कृत के या किसी भी भाषा के जो श्लोक हैं उनका पढ़ना बहुत जरूरी है. किसी भी, तो वो आयता हो या भगवद गीता के श्लोक हो या गणपति शब्द, बोलना चाहिए. हमारी जीभ है, हमारे होंठ है, हमारा गला है, ये हमारे आयुध है. इन आयुधों का सही ढंग से यूज करना और उनके ऊपर बहुत कुछ परिणामकारक, जिम जाने वाले लोग जो है वो जानेंगे कि हमें जिम एक दिन में हमारी बॉडी नहीं बनती. तो इसीलिए अभिनय भी वैसा ही है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. उसी के ऊपर बार बार हम कुछ करें तो ही उसका असर मालूम होता है. ये मेरी आवाज़ यदि है या हरीश भिमाणी जी है हमारे सामने, तो वो एक दिन की बात नहीं है, साधना है उसके पीछे. तो वो साधना समझ लेनी चाहिए. आप भाग्यवान इसलिए है कि ऐसे लोग आपके सामने हैं. मैं तो बोलने वाला हूँ, ये करने वाले हैं,
हम जब नाटक में काम करते हैं तब अलग बनते हैं। वो अलग अलग भूमिकाओं में आपको यदि जाना है तो इसीलिए कैरेक्टराइजेशन का स्टडी होना ज़रूरी है। उसके लिए आवाज़ किस तरीके से होनी चाहिए इसकी भी स्टडी करनी चाहिए। मैंने एक टिड़कणी आगरकर नाम का जो प्ले किया था उसमें भक्ति बर्वे नाम की एक बहुत बड़ी मराठी के एक्ट्रेस थी। उसे वो विकेशा जो रहती है, माने हिंदू धर्म में पहले पति मर गया तो उसे आइदर वो सती हो जाती थी या विकेशा हो जाती थी। तो वैसा एक कैरेक्टर करना था। उसकी उम्र थी कुछ 35 या उस कैरेक्टर की, इनकी थी 50 वगैरह, लेकिन उन्होंने उसके लिए कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वो सीखने के लिए अशोक जी रानड़े के पास गई थी। वो 5 दिन उनके पास जाके बैठी, समझ लिया उन्होंने, और जब उनका परफॉर्मेंस हो गया था तब माय गुडनेस, मैं अभी बता ही नहीं सकता। वो परफेक्शन आना चाहिए हमारे ईच एंड एवरीथिंग। वो परफेक्शन आने के लिए हमें कष्ट करना चाहिए। वही मैं जिम की बात कर रहा हूँ। जिम में जाते हैं तो 2 दिन में देखा है जिम में जा रहा हूँ मैं, देखा मेरे को। तो वो जो बॉडी कल्चर है वैसे हॉर्टिकल्चर है, वैसे वॉइस कल्चर है। तो वॉइस कल्चर पे ध्यान देने के लिए वो शास्त्र ही है। तो शास्त्र पढ़ना ज़रूरी है। शास्त्र के बिना आप आगे नहीं जा सकते। और मुझे टाइमिंग बता देना क्योंकि मैं लेट आया हूँ और मेरी वजह से लेट हो गया। जो नहीं, जो भी है। तो मैं आप बच्चों से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। योग तो आप सभी को पता है। योग 21 हमने योगा डे करके इंटरनेशनल योगा डे हो गया। तो आपको थोड़ा समझ के जरा मेरे साथ आना होगा। हमने कुछ आपको किसी ने भेजा, कुछ जोक भेजा या कुछ कहानी भेजी, तो हम रिप्लाई क्या करते हैं? स्माइली भेजते हैं ना, स्माइली भेजते हैं ना। अच्छा लगा या बुरा लगा या बहुत गुस्सा आया तो लाल कलर का स्माइली भेज देते हैं। हमारे स्वर और व्यंजन जो है उसे समझना चाहिए क्यों हम भारतवर्ष में हैं, सभी को वो पता है। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ आ। सब मेरे साथ बोलिए। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ आ। अच्छा लगता है ना, स्कूल में जाके बैठे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं। अब यही स्माइली के साथ आपके जो स्माइली है ना, you feel it like that? O ये है, दिए हुए हैं, उन्होंने वो डिजाइन किया हुआ है। हमें वो सोचना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए। ऐसे ही आप जैसे बच्चों के साथ बातें करते करते ये मैंने फील किया यार ये सभी स्माइली है। मेरे पास है, वो अभी दिखाना नहीं चाहता हूँ। हाँ दिख रहा है। तो ये एक पार्ट हो गया। अब हमारी जो चेहरे की रचना जो है वो आपने खोपड़ी देखी होगी, तो खोपड़ी में यहाँ कैप्स है ना, तो वो पॉकेट्स हैं जहाँ पे हम जो बोलते हैं उसकी आवाज़ की तारता बढ़ाने की शक्ति वहीं पे। हमें सर्दी होती है या जुकाम होता है तब हमें यहाँ पे म्यूकस आ
सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हमारी आवाज़ बदलती है। तो क्यों बदलती हैं? वो किसी की बोलने की आदत ही ऐसी है, नाक से आवाज़ निकालते हैं। लेकिन हम जब सर्दी या जुकाम से हैरान हो जाते हैं तो ये यहाँ से प्रेशर आता है नाक के ऊपर और हमारी आवाज़ बदलती है। ये लेकिन आवाज़ बदलने वाली क्रिया जो है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से प्रेशर आ रहा है, तो वो आवाज़ निकालने के लिए हम बाकी सारे मिमिक्री आर्टिस्ट रहते ही है, लेकिन हमें एज एन आर्टिस्ट प्रेजेंट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ये भी सोचना चाहिए। मैं जब सिर्फ बिंदुओं को स्पर्श कर रहा हूँ, ये बहुत डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ बिंदु रख रहा हूँ सामने। इसके बाद ये मैं माइक्रोफोन पकड़ के रखा हूँ। मैंने ये जो माइक्रोफोन छोड़ दिया तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँचने के लिए मुझे क्या कष्ट लेनी चाहिए? टीचर से यहाँ बहुत सारे तो टीचर जानते हैं 80 बच्चों का क्लास कंट्रोल कैसे करें। चिट्ठी आई है, तो वो लिखने के बाद ही पता चलता है। तो वो जो है हम कहाँ बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, तो हमारे आवाज़ की तारता कैसी रहनी चाहिए वो सोचना है। हम स्टेज पे आए, सबके सामने जब भाषण देने, तो मुझे ये सोचना चाहिए मेरा विषय तो परफेक्ट मेरे माइंड में है या नहीं, या मैं पेपर ढूंढ रहा हूँ यहाँ वहाँ और बाद में पढ़ना चाहता हूँ या कुछ बताना चाहता हूँ, तो उससे कुछ फायदा नहीं। यार इम्पेशेंट और आपकी कैपेसिटी नहीं है, ये पता चले। और बाद में ये इंस्ट्रूमेंट तो है ही, ये तो सपोर्ट करने वाला है, लेकिन आप सभा से संबोधित करना चाह रहे हैं, तो सभा को संबोधित करते वक्त अब मेरे सामने लोग ऐसे बैठे हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन मुझे हर एक को मेरी नजर में रखे रखना है। ये मैं ध्यान में रखता हूँ। स्टेज पे मैं एज एन एक्टर जाऊँ तो ये करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे किसी लेक्चर देना है तो लेक्चर के लिए मुझे सभी बच्चे या सभी सभागार मेरी तरफ आने की ज़रूरत है। तो मैं खींच के अपनी ओर लाता हूँ, उसके लिए मुझे कष्ट करना पड़ता है। स्लो एंड लो, शुरू करते वक्त स्लो एंड लो, ये होता है तो ये आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, माइक्रोफोन। मैंने आते तक आकाश जी से पूछा कि भाई स्टैंड नहीं है, तो ये नहीं वो स्टैंड कर रहा हूँ। बोला ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज जो है, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ प फ प, तो ब्लास्ट होता है इसके सामने मैं जो बोल दूँ तो प फ प भ नहीं होता। ये शास्त्र है, ये शास्त्र सीखना है और वो प्रैक्टिस करके ही आएगा। तो माइक्रोफोन किस हिसाब से हम पकड़ ले बोलने के लिए, और बाद में ये जो औष्ठव्य शब्द जो है उनका उच्चारण माइक्रोफोन के सामने कैसे करें, ये भी शास्त्र है। ये शास्त्र पढ़ना चाहिए, समझ लेना चाहिए। लोग कह, इसीलिए ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो आप करते रहेंगे, करते रहो तो यू विल गो अहेड लाइक एनीथिंग। और ऐसी जो संस्थाएं हैं आपको एक जो भी कुछ देना चाहते हैं, तब ट्राई टू हैव अ ब्लॉटिंग पेपर विथ यू, जो साइंस का है ही नहीं है, कॉलेज कॉमर्स का, लिटमस पेपर जैसे। ट्राई टू पिक अप द पॉइंट्स एट लीस्ट, और बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए, ये पहले सोचो, बाद में सब कुछ हो जाएगा। तो मेरा यहाँ
लेट आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और क्योंकि बुजुर्ग पहले आ चुके थे और मेरे हाथ में नहीं था वक्त पाना, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा था, ट्रैफिक में अटका, तो सॉरी फॉर दैट। और ये अवसर मुझे दे दिया बिग बैंग थिएटर और क्लारास कॉलेज ने, इसलिए उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। मतलब क्या होता है कि एक लेक्चर तो लेक्चर होता है, परंतु जब उस चीज़ को प्रैक्टिकल में कोई करके बताए और सिखाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। प्रमोद पवार जी, मैं तो ये चाहूँगा कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने एक जो थिएटर एंड मास कम्युनिकेशन करके सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, तो मैं चाहूँगा आप अपना ये जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो जितने कॉलेजों में जाकर के दें उतना अच्छा होगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये तो हमने बंदिश लगा दी थी, इसलिए आपने इतने कम समय में जो है उसको समेटा है, वरना सब तो ऐसे हैं कि वो मतलब वो लगातार जहाँ आप शुरू करें इतिहास से लेकर के आज तक जितनी चीज़ें हैं उसको कैसे क्या करना है उस पर वो आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जो भरत मुनि जी की बात हुई थी, तो उसमें उन्होंने जो नाटक के अलग अलग आयाम बताए हैं, उसमें एक बहुत ही ज़रूरी आयाम बताया है जो कि है नृत्य। राइट मैम? तो नृत्य के बगैर जो है वो एक्टिंग जो पूरी हो नहीं सकती है। अच्छा, लोग सोचते हैं भैया एक्टिंग है तो एक्टिंग तो सिर्फ मंच पे करनी है, फिल्मों में या सीरियल में करनी होती है, मगर देखा जाए तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी एक्टिंग होती है और सब एक्टर्स भरे पड़े होते हैं। अगर आपको सबसे ज़्यादा एक्टर्स मिलेंगे तो पता है कहाँ मिलेंगे? मार्केटिंग में। मार्केटिंग में जो आपको बेचते हैं उससे बड़े एक्टर कौन होंगे? आपकी ज़रूरत नहीं है मगर वो ज़रूरत को आपके अंदर पैदा करते हैं, तो उससे बड़ा क्या होगा? अब जो हमारी सेकंड स्पीकर है राजश्री शिर्के जी, शी इज़ एन एक्लेम्ड एक्टर, राइटर, theater activist and a classical dancer. She is a true pioneer in a unique teaching and learning program of Indian classical dance. From achieving the rare feat of mastering two Indian classical dance styles, that is Kathak and Bharatanatyam. तो ये जो समावेश है उत्तर और दक्षिण का वो कमाल का है। Along with scripting hybrid dance performances, that is combining classical dance with other art forms like theatre, music, fine arts and literature. In a rare occurrence of combining vigorous research of forgotten dance and art forms with their performances, her experimental theatre has opened new vistas. Her master's degree in Hindi literature and Master of Fine Arts degree in Bharatanatyam have ensured a critical balance between theory and performance. As the founder director of the LASIM, that is Academy for Dance Education and Performing Arts, she has assured that the training and performance of Indian classical dance moves beyond the prestige of the privileged few to the benefit of the socially underprivileged children and women in particular. Srimati Rajshri Shirke has earned laurels for her visionary imagination and creative spirit both at home and abroad. From the prestigious Sangeet Natak Akademi Award to the Marathi Sahitya Sangh Award for experimental theatre, her versatile creativity has been duly recognized. Her achievements stand out not only as a guru but also as a keen social entrepreneur, engaging in a constructive dialogue with the emerging challenges of modern India. Her simultaneous journey in the field of theatre has yielded groundbreaking theatrical creations which have been appreciated by theatre lovers and the connoisseurs alike. So I'd like to invite Rajshri. मानते हैं हम लोग कि भरत मुनि ने लिखा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम समझते कि भरत नाम की कोई कम्युनिटी होगी, क्योंकि ये इतना महान ग्रंथ है, उसको लिखने के लिए न जाने कितने साल कितना समय लगा होगा, और वो कम्युनिटी जो इन सारी कलाओं में पारंगत थी और फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया है, तो हमारे लिए ये अत्यंत अभिमान की बात है कि ये सारी कलाएं
रिकॉर्डिंग 5000 साल वर्ष पूर्व भी उतनी ही प्रचलित थी, विद्यमान थी। और बंद हो जाए कैसे कैसे हम तक पहुंची है तो बहुत ही चर्चा का विषय है, वहाँ नहीं जाऊंगी। लेकिन जब इसकी प्रस्तुति मतलब वो जो लिखने के बाद भरत मुनि को जब ये सौंपा गया तो उन्होंने जो उसकी प्रस्तुति थी तो वो भी थोड़े दो ही शब्द में बताती हूँ कि शिव जी के सामने जब प्रस्तुत किया नाटक तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं संध्या के समय जो नृत्य करता हूँ उसे इसमें अगर उसका समावेश हो जाए तो ये और भी सुंदर दिखेगा। तो भरत मुनि ने कहा कि हमें तो पता नहीं, हमें आता नहीं है नृत्य। तो उन्होंने अपने जो शिष्य थे तंडु उनसे कहा कि वो नृत्य की शिक्षा दी जाए। नृत्य मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। NRITTA नृत्य, आंगिक मूवमेंट्स, हलन चलन जो करने और आहार उपहार जब सब कुछ है। उसके बाद उन्होंने कहा शिव जी ने कि इसमें आसारी बहिर्गीत ऐसे गीत का उसमें समावेश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभिनय तो है तो गीत के ऊपर अभिनय कैसे फिर से क्यों करना चाहिए। उन्होंने कहा इससे और सुंदर आपकी प्रस्तुति बनेगी और उस नृत्य में नृत्य और जो संगीत है उसका गायन कला है उसका रिदम है वो उसके अनुसार जब आ जाएगा तो एक परिपूर्ण आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा, आपकी प्रस्तुति हो जाएगी। तो इस प्रकार नृत्य उसमें उसका समावेश हो गया। आइए चलते सीधा सीधा नाट्य शास्त्र में ही जो अभिनय के 4 प्रकार इसकी जो चर्चा की है तो वो 4 प्रकार क्या है और वो किस तरह से नाटक में या नाटक में तो अभी सुरेश जी तो बोलेंगे ही, प्रमोद पवार जी ने भी बोला है, लेकिन मैं उसका नृत्य में और नाटक में भी क्योंकि नाटक भी करती हूँ तो किस प्रकार से उपयोग किया जाता है उसका छोटा छोटा उदाहरण बताऊंगा। अंगिक अभिनय शब्दों से ही जाहिर है अंग के साथ उसका संबंध है। अंग मतलब आपका पूरा शरीर, उसको 3 हिस्सों में बांटा है, अंग, उपांग, प्रत्यांग। अंग मेजर लिम्स जो भी आपके मेजर लिम्स सिर है, धड़ है और जो है 6 है। अभी उसको डिटेल में क्योंकि मैंने पहले कहा था कि इसका पूरा मतलब इतना विस्तीर्ण अभ्यासपूर्ण वो ग्रंथ है कि हम ऐसे 20-25 मिनट में तो मैं आपको डिटेल में कुछ नहीं बता पाऊंगी। तो अंग मेजर लिम्स, प्रत्यांग द जॉइंट्स, उपांग द लिम्स ऑन योर फेस जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आईब्रोज, आईलिड्स, आईबॉल्स, नोज, चिक्स, चीन, टीथ, लिप्स, ये सारे आपके उपांग हैं। तो इनका उपयोग अभी किसी ने मुझे पूछा था, मुझे अभी याद नहीं कि वाचिका का उपयोग कैसे करते हैं या नहीं करते। नाटक तो हमको मालूम है संवाद बोलते हैं, लेकिन नृत्य में हमने अभी अंगिक के बारे में आपको बताया, ये मेजर लिम्स, माइनर लिम्स और जॉइंट्स जो है, तो ये इसका उपयोग नृत्य में कैसे करते हैं, नाटक में मैं कैसे करती हूँ वो भी आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगी। उसके बाद है वाचिका अभिनय जो हम बोलते हैं किसी भी प्रकार से, या कोई गाना गा रहा है, जो शब्द है, जो साहित्य है, उसका अर्थ है, शब्द के परे भी उसका अर्थ है जो हम सुनते हैं। उसके बाद उस शब्द का हमारे लिए क्या अर्थ बनता है, उसका सबटेक्स्ट क्या है, वो सब कुछ ये वाचिका में आ जाता है। उसके बाद है आहार्य अभिनय, हम जो पहनते हैं, कॉस्ट्यूम पहनते हैं, लेकिन उतना सीमित अर्थ नहीं है। आहार्य मतलब नेपथ्य में जितनी भी चीज़ें आप उसमें उसका समावेश करते हो तो वो सब आहार्य में आ जाता है। या तो आपका स्टेज क्राफ्टिंग कैसे है, या अगर मुझे ऐसा सीन दिखाना है कि कोई कपल बैठे हैं और रात हो गई है और चंद्रमा निकल आया है, तो अगर कोई बैठे हैं वहाँ पे और यहाँ पे केवल एक वाइट बड़ा सा ऊपर ऐसे लगा दिया पेपर कटवर्क, तो समझ में आ जाता है कि चांदनी रात में फुल मून नाइट है। तो ये सब ऐड होता जाता है, उसको मदद करता है अभिनय को। अभिनय मतलब जो आपको कहना है वो आप सामने वाले तक उसे कैसे ले जाते हैं। अभिव्यक्ति
उसका जो बदलाव आता है वो नहीं आ सकता है। तो वो है सात्विक, जो सत्व शुद्ध जो मन से होता है। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि यार क्या एक्टिंग कर रहा है, कुछ नहीं जा रहा है ऐसे। तो जब तक वो अपने चरित्र के साथ पूरा जुड़ा हुआ नहीं रहता है तो तब तक वो बात बनती नहीं है, वो है सात्विक अभिनय। तो इन 4 अभिनय के प्रकार अभी प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने। पहले आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय हम नृत्य शैली में अधिकतर हस्त का, आँखों का, आईब्रोज का, मुझे नहीं आते हैं, आईब्रोज का, नेक का, सिर का, स्टार्स अलग अलग प्रकार के उसका उपयोग करते हैं। अभी सिंगल हैंड जेस्चर्स होते हैं, मतलब एक हाथ से की हुई मुद्रा, 2 हाथों को मिलाकर की हुई मुद्रा, और संयुक्त हस्त, संयुक्त हस्त। जैसे ये है अंजलि, कपोल, कर्कट, स्वस्तिक, डोला, हस्त, पुष्प, उत्संग, शिवलिंग, ऐसे अलग प्रकार के हैं। पताक, पताक, अर्ध पताक, कर्तन, मुख, मयूर, अर्धचंद्र, कराल, शुक्रकुंड, ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो उनका उपयोग करते समय उसको किस तरह से, वाचिक तो हम करते ही हैं, जैसे कभी मैंने कहा कि जो हम श्लोक बोलते हैं या कोई भी पद चल रहा है, कोई भी भजन चल रहा है, कोई ठुमरी चल रही है, तो वो ठुमरी में हम वाचिका का उपयोग करते हैं, अंग से दिखाते हैं, इसलिए आंगिक अभिनय है। सारी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ एकाहार्य है, मतलब हम लोग कॉस्ट्यूम चेंज नहीं करते, क्योंकि इसी कॉस्ट्यूम में, अभी मैं इस साड़ी में हूँ, तो इस साड़ी में भी जो कुछ करके दिखाऊंगी, भले मैं कैरेक्टर चेंज करूँ, लेकिन मैं आंगिक का उपयोग करूँगी, वाचिक का उपयोग करूँगी। सात्विक के बिना तो हम अभिनय कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ब्रह्मजी ने आपको एक्सप्लेन किया, जब तक आपको चरित्र आप में पूरी तरह से समाहित नहीं हुआ है, आप नहीं कर सकते उसे। तो वो सात्विक का इतना महत्व है इन 4, और वो कैसे मदद करता है। तो आइए एक वंदना करती हूँ, श्लोक है। सौभाग्य से अभी तो मेरे साथ गायक नहीं है, लेकिन थोड़ा मदद करेगा मुझे। गजाननम, गज आनंदम, जिसका आनंद मतलब चेहरा गज का है, हम सभी जानते हैं गजानन गणपति को। गजाननम, तो गजाननम, अभी गज दिखाने के लिए आप सभी को मालूम है ये है हाथी सोने रंग के गज, तो ये मुकुल हस्त है। अभी ये मुकुल हस्त डेफिनेशन दिया है नाट्यशास्त्र में और अभिनय दर्पण में भी। हाथों की 5 उंगलियों, टिप ऑफ द फिंगर जब जॉइन किए जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के उपयोग करते हैं। खाना खाने के लिए कुछ डर लग रहा है तो उसके लिए भी, या समदम शरीर यूज करते हैं। तो हम कैसे उसको यूज करते हैं, गज आनंद दिखाने के लिए। हाथी है ये, इसका आप देख रहे हैं, इसके कान ऐसे दिखाते हैं, और ये उसकी सूंड। गजानन भूत गणाधि सेवित, सारे जितने इस पृथ्वी पर है वो भूत और गण है, वो आपकी सेवा करते हैं। कपित जब फलचारु भक्षित, अब ये कौन भक्षण कर रहा है, गणपति भक्षण कर रहा है। हम तो खाते समय वो भी खाना खा रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं या ऐसे। अभी गणपति अगर भक्षण कर रहा है तो गणपति तो कैरेक्टर है, तो कैसे बैठेगा। अभी मैं बैठ के नहीं दिखा सकती हूँ आपको, लेकिन वो ऐसे रख के उसको उठाता है और शांति से उसको उठा रहा है। तो इस प्रकार अंग का कैसे उपयोग करते हैं हम लोग, क्योंकि हमने बताया भूत गणा से कपित जब फलचार है, मैंने बड़ी थाल, छोटी सी थाल में जो दिखा के आप लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, जिसमें वो क्या है, सोदा बर्फ है ना, जो थाल इतनी बड़ी होती है। तो हम गणपति की थाल दिखाने के लिए उसको, हम उसका कौतुक कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो वो थाल भी हमारी ऐसी बड़ी, ये सूची हस्त है जो डिनोट करता है। कुछ भी हम बोलते हैं ना ऐसे, अरे वो देखो वो देखो, तो ये सूची हस्त है। अब इसका डेफिनेशन से लेकर उपयोग किस तरह किया जाता है वो भी आपको नाट्यशास्त्र में या अभिनय दर्पण में या अनेक ग्रंथों में आपको मिलेगा। हम उसी का अभ्यास करके ही ये सारी जो प्रस्तुति है वो करते हैं। फलचारु भक्षितम उमासुतम, उमा पार्वती और उसका ये बेटा है, सुतम बेटा है। तो उमा दिखाने के लिए फीमेल है, तो हम उसको उमा पहले दिखा दिया और सुत अपने सुत को
अपने बेटे को देखने के लिए, उसका क्या स्टांस होगा उसको देखने के लिए। फिर शोक, ये हस्त है, पताका हस्त है, उसको ये जितनी डिफिकल्टीज है, ऑब्स्टेकल्स है, उसका विनाश करने वाला। तारक नमामि, ये तो स्टाइल है इसलिए हम लोग चक्कर लेके आते। अंजलि हमने फिर से यूज किया, नमामि। विघ्नेश्वर, विघ्न का हरण करता। पाद पंकज, उसको देखते देखते आपकी आंखों में अद्भुत पंकज। हम सभी जानते हैं कि हम भगवान के चरणों में जब जल डाल लेते हैं तो वो जल को हम प्राशन करके, तो ये सारी हमारी डेली लाइफ में जो हमारी ये सारी जो चीज़ें हैं वो सबका विवरण नाट्यशास्त्र में या वेदांत में दिया हुआ है, और वो हमारे नृत्य शैली में करते समय हम उसका इस तरह से उपयोग भी करते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बताती हूँ। सभी को लगता है नाट्यशास्त्र नाम से नाट्य का शास्त्र है। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये कला और काव्य का ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है कि हर कोई दो चीज़ों के बारे में एक माना जाता है। ऐसे महाभारत जो पूरे विश्व में नहीं है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में है वो पूरे विश्व में है। भरतमुनि नाट्यशास्त्र के बारे में भी ऐसे कहते हैं, ऐसी कोई कला, साहित्य, कुछ भी शिल्प, चित्र कुछ भी नहीं है जो नाट्यशास्त्र में नहीं है। तो नाट्यशास्त्र नाम समझ के किसी भी क्लासिकल परफॉर्मर ने ये नहीं सोचना चाहिए कि तो नाटक का है, हमारे लिए कोई काम की बात है, ऐसा नहीं है। तो आइए अब चलते हैं हम कि किस प्रकार वो आगे का अभिनय का उपयोग करके, और मैंने कहा था महत्वपूर्ण बात मैं क्या बता रही हूँ, आज पूरे भारतवर्ष में जितनी भी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ प्रचलित है, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, सक्रिय नृत्य, कथकली, छाऊ नृत्य, अभी तो एक एक को मान्यता मिलते मिलते 4 से 6 हो गई, 6 से 7 हो गई, 7 से 9 नृत्य शैलियाँ हमारे भारतवर्ष में है। तो किसी किसी का भी नाम हमें नाट्यशास्त्र में दिखाई नहीं मिली। लेकिन क्या महत्वपूर्ण बात है, ऐसी कोई भी नृत्य शैली नहीं है जो नाट्यशास्त्र में जिनका वर्णन किया है, नृत्य और नाट्य और बाकी बहुत सारी चीज़ें, उसका अपनी अपनी नृत्य शैली में अपने अपने जो आंचलिक में जो प्रभाव आया है, उन्होंने उसको जो अपना योगदान दिया है, उसके जो उसका डेवलपमेंट हुआ है, वो उसका उपयोग नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी नृत्य शैली नहीं है, इसलिए तो उसे शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि वो एक अलग शास्त्र में बनी, उसका साइंस है। तो छोटा सा अभी मैं आगे का गजानन करके दिखाती हूँ। उसके बाद नाटक में किस प्रकार जिस आंगिक यवाचिक आहार, तो नहीं मैंने कहा था आपको कि हम एक आहार यही करते हैं नाटक करते समय भी। मैंने कथा कथन शैली में काम किया है, मंदिरों की कथा कथन शैली और उसके विकास की संभावना, ये मेरे थीसिस का रिसर्च का टॉपिक था। तो मैंने किया के साथ, और वहाँ की कुछ परंपरा और इसकी वृंदावन के बहुत सारे मंदिरों में जाकर मैंने वो अभ्यास किया है। और किस प्रकार कथिक, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो महाराष्ट्र में कीर्तनकार परंपरा है, अधिकतर कथक नृत्य शैली का, जो कि कथक के लिए कहा जाता है, कथा कहे सो कथिक कहा हो। तो ये कथा किस प्रकार मंदिरों में कही जाती थी, उसका आज भी उदाहरण हमें अयोध्या के मंदिरों में, अगर आप छुना महोत्सव में, मतलब अगस्त में तो होता है, अगर आप जाते वहाँ पे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे वहाँ पे बड़े बड़े भवन है, जब
चारु भक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं पाद पंकजं पाद पंकजं जो कथाकथन शैली की मैंने बात की कि कैसे उसके जो सूत्र उसमें दिखाई देने लगे नाट्यशास्त्र भी अपना से को नहीं पढ़ा कि नाट्यशास्त्र अपने डिजाइन में खड़ा होकर डाल रहा है कलकत्ता की तरह हम कैसे नाट्यशास्त्र है वो सब वहाँ पे होता है और उसके बाद अपनी रुचि की उसका मैंने अध्ययन तो मेरी ये पंडित बिरजू महाराज के साथ में बहुत सारा काम किया है काम मतलब जब स्वयं कथित परंपरा से जिनमें अपने बिहार को कहते हैं लघुआ गाँव और वहाँ पर जो कथित लोगों का एक पूरा गाँव है पूरा सारे कथित वहाँ पे रहते हैं तो उनसे भी ये बात जानी महाराज से भी जानी तो ये इसके पट्टे का उपयोग करके इस प्रकार ये आधार में आ गया क्योंकि कोई शरीर के अलावा मैं किसी और का पट्टी का इस्तेमाल करूँगी और सभी जितने नाटक से समाज से आप जानते हैं कि सीन को इफेक्टिव बनाने के लिए आप उसको किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं लाइट्स है साउंड है जो भी है या स्टेज क्राफ्ट है तो ये एक पट्टी का उपयोग करके नृत्य से खास कर कथित परंपरा के लोग और आज मैं उसे लोग कथित परंपरा से आख्यान करती हूँ कथाकथन शैली में तो इसलिए हम ये पट्टी का इस्तेमाल ऐसे करते हैं ये एक छोटा सा दुपट्टा शादी कहाँ पे आई है मैं ये जो दुपट्टा है इसका दुपट्टा ले लिया चलिए ये है सीधा इसको ऐसे डाल दिया आप सभी जानते हैं सभी नरेटर ऐसे गले में डालकर वो मखान करके अपनी जो बात है वो कहेंगे महाराष्ट्र में वो इस तरह से तो डालती है एक बड़ा सा हार में डालती है मंदिर तत्काल खड़ा रहता है तो हार में डालती है और उसका इस्तेमाल करते हैं कथित परंपरा में भी मंदिरों में कथा कहने वाले मैंने देखा उनको इस तरह से वो अंगवस्त्र जो होता है उसे डालकर वो मेन सूत्रधार बन जाता है और ये डालकर उसका इस्तेमाल करते हैं कथा जैसे आरंभ होती है इस दुपट्टे का उपयोग अगर मैं सैनिक हूँ तो उसको उसी दुपट्टे को इस तरह से बांध के उसका उपयोग करते हैं अगर वो कोई बड़ा सा व्यक्ति है जो हमारी परंपरा है माता तो खुला छोड़ते नहीं है लेकिन आजकल तो हम ऐसे जाते हैं जितने लोगों को पता होगा कि इस तरह से उसको पगड़ी बांध के पगड़ी तरह से नहीं आएगा मुझे लेकिन पगड़ी बांध के उसका उपयोग करना है अगर वो स्त्री है तो वो स्त्री बताने के लिए सभी जानते हैं कि किस तरह सब्जियाँ घूंघट लेती है तो उसको किस तरह से लेकर इस तरह से लेकर अगर वो माँ है तो इसी दुपट्टे को ऐसे तो इस प्रकार से अलग अलग होता है अभी अगर मुझे मेरे एक ही कॉस्ट्यूम में मुझे राम दिखाना है तो इस दुपट्टे को इस तरह से लेके ऐसे रख के देखो ये मेरी आंगिका का उपयोग कर रही हूँ ये धनुष दिखाने के लिए शिखर हस्त का उपयोग और बाण दिखाने के लिए कपित्थ हस्त या कभी कटकामुख हस्त का भी इस्तेमाल किया जाता है तो मैं इस तरह से अब ये हमारा आंगीढ़ स्थान है वैष्णव स्थान है जो इसको सीधा ऐसे रखते हम इसको थोड़ा सा आगे ऐसे खड़े रखते हम ऐसे खड़े अभी आप देख सकते हैं कि मेरा सीना मेरा शोल्डर
वाचिकम। मैं तो एक स्त्री हूँ, कथाकार हूँ, और रावण को मुझे बताना है। आप सभी जानते होंगे रावण और मंदोदरी रावण को बार बार समझाने का प्रयास करती है कि जो कुछ आप कर रहे हो गलत है, क्योंकि पराई स्त्री का हरण करना पाप है और अंत में विजय सत्य की होगी। रावण समझता है कि बहुत सारा प्रभाव ऊपर महादेव माता भी है, देखा वैश्यकला की कड़िया, जिसमें उन्होंने नारी के बारे में बहुत अच्छी बातें बहुत ही विस्तार से बताया है। कुछ समझता है नारी दुर्बल है, इसलिए विकसित होता है, और समझता है उसी प्रकार से उसका एरोगेंस कैसे है, और मंदोदरी किस प्रकार से अपना सत्य को पकड़ के रावण को समझाने का प्रयास करती है। इसी पट का इस्तेमाल करके हम उसे करते हैं, और इसी रामायण से ये दोनों ये हैं सारी चराचर को अपने वश में कर लिया। तो पराई स्त्री का हरण करना पाप है। हाँ प्राणनाथ, पराई स्त्री का हरण करना पाप है। प्रभु रामचंद्र जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने मधुर के डंडे से महापराक्रमी बलशाली वीरों को पराजित किया है। प्राणनाथ, मैं नहीं सौंप दीजिए। प्राणनाथ, मैं नहीं जी को सौंप दीजिए। मैं देही जी को सौंप दीजिए। सुरदेव प्रिया, सुरदेव प्रिया, सुरदेव प्रिया, सुरदेव प्रिया, तथा भय माना जग जोधा को मोहि समाना। देव देव गणेश दर्शन कवन हेतु सुरदेव प्रिया, वृथा भय माना जग जोधा को मोहि समाना। वरुण कभी पवन यम काला भुजबल जितै, भुजबल जितै सकल दिक्पाला। सुरदेव प्रिया, वृथा भय जग जोधा को मोहि समाना। जग जोधा को मोहि समाना।
वो पहन के उसका इस्तेमाल करके रंगमहल दिखाने के लिए केवल कपड़े का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार हम और साथ में मैंने कहा आपसे जब तक मैं नहीं सोचती कि मैं जब तक मैं नहीं सोचती मैं गणिका का खड़ा रहना और का खड़ा रहना वो गलत प्रकार से अगर मैं नहीं उठाती तो वो चरित्र तो इस प्रकार से 4 कवि हैं बहुत सारे कवि हैं और मेरे ख्याल से तो विस्तार से नाटिशा से बहुत व्यक्तिगत रहते हैं 5,000 वर्षों तक इसकी डेट हम लोग सुनते हैं कि 2nd सेंचुरी 8 या 2nd सेंचुरी जब तक ये परंपरा चलती आती है हमें समझ में नहीं आता कि पक्ष पुरानी हमारी संस्कृति है और इसका आज सभी कलाओं इसका राजश्री शेट्टी जी जो है वो जब भी मतलब कहती हैं बोलती हैं तो मेरा तो दिल ये करता है बस सामने बैठकर उनको सुनते हुए और देखते हुए। अब आप सोचिए अगर ऐसी व्यक्ति हमारे बीएमएम में जो थिएटर और मास कम्युनिकेशन जो है वो सब्जेक्ट पढ़ाने आ जाए तो मेरे ख्याल से मैं तो कहूँगा कि मैं स्टूडेंट जाके बैठ जाऊँगा और सारे 50 के 50 लेक्चर अटेंड करूँगा, क्योंकि मतलब इतना ज्ञान और वो सारा ज्ञान जो कि रिटन में है उसको प्रस्तुत करना, तो मैं तो मतलब क्लारस कॉलेज आई थिंक सो वो धन्य हो गया है सर, है कि नहीं, कि यहाँ इतने महान विभूतियाँ जो है आई हैं। अच्छा एक कमाल की बात है आज के कार्यक्रम में महान विभूतियाँ यहाँ भी बैठी, महान विभूतियाँ यहाँ भी बैठी। मतलब मैंने विनोद नाथ जी ने कहा, सुभाष सहगल ने कहा, तो मतलब हमने महाभारत के समय की बात की, अपना उसमें रामायण के एडिटर की बात की, और जय हनुमान के डायरेक्टर भी यहाँ बैठे विजय पांडे जी, तो वो हैं, प्लस राइटर और प्रोड्यूसर राजेश सेठी जी हैं, श्री प्रकाश मैनिक जी हैं, और सिनेमा के इतिहास के क्यूरेटर जो है सुभाष छेड़ा जी बैठे हैं यहाँ। मतलब अभी जो सिनेमा का इतिहास फिल्म डिवीजन से लेकर के नेशनल फिल्म अकादमी में जो जिंदा है वो इनके बदौलत जिंदा है। और इतना ही नहीं, उनके बगल में सुभाष साहू जी जो कि इतने महान नेशनल अवार्ड विनिंग साउंड डिजाइनर ऑफ ऑल द फिल्म्स ऑफ व्हाट यू कॉल दिस, विशाल भारद्वाज, शायद कमीने भी आप ही की थी और अपना ओमकारा भी आपकी थी। तो ये सारी फिल्म मतलब इतनी सारी महान विभूतियों के सामने ये चीज़ जो हो रही है, और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, आई होप, वैसे यहाँ मास मीडिया के कितने स्टूडेंट्स हैं? ओके, ठीक है, एंड आई एम श्योर यू हैव गेन समथिंग। नाउ व्हेन यू गो बैक, व्हेन विल बी थॉट टू यू, so it will be very easy for you to relate कि what has been basically what has been taught to you। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नो डाउट कि जैसे मैं बताया गया है कि 5000 साल पुराना जो है हमारा ये थिएटर है, वो वहाँ से यहाँ तक जो है चले आ रहा है। तो जो थिएटर का जो वेस्टर्नाइजेशन वर्जन है और वो सारी बातें उस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे पास प्रोफेसर सुरेश भारद्वाज जी हैं, जो कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 1980 में, और वहाँ से रिटायर होकर के थिएटर लाइटिंग फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से रिटायर हुए हैं। ही इज़ द फॉर्मर टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ रंग मंडल भारत भवन भोपाल। ही इज़ द फाउंडर मेंबर ऑफ संभव थिएटर ग्रुप ऑफ दिल्ली। Along with theatre, he has also worked in films and television. He created and directed popular programs like Aapki Adalat, Lekhu, etc. He has conducted a number of theatre workshops throughout the country and abroad. He served as a member of the international jury for UNESCO meet of World Drama School in Sinai.
Right, sir? His major theatre productions include Aadhe Adhure, Prem Samvad, and Chatushko. He is recipient of prestigious Sangeet Natak Academy Award and Roscoe UK Award for Chaman Lal Memorial Society. सर जी, अगर आप चाहें तो आप बैठ के भी कर सकते हैं। बैठ के ही थोड़ा सा ठीक रहेगा। बिल्कुल। मंच पर उपस्थित मेरे अग्रज साथी राजश्री शिर्के, प्रिंसिपल साहब जी, श्री प्रिंसिपल महोदया, मेरे मित्र आकाश और सभागृह में विराजमान निमाणी जी, गनात्रा जी, सैगल साहब, मैं कुछ ही नाम पिकअप कर पाया हूँ, तमाम अग्रज और विद्यार्थी। विषय बहुत लंबा है। जब आकाश जी से मेरी बात हुई विषय पर बोलना है तो इसकी अपनी सीमाएं भी हैं और ये विषय बहुत बृहद भी है, बहुत बड़ा भी है। पहली बात तो मुझे लगता है कि ये हमें समझ लेना चाहिए कि एक तो शास्त्र की बात है, तो शास्त्र के तौर पर हमारे सामने जो एक शास्त्र है इस विधा से संबंधित वो नाट्य शास्त्र है। अब ये दीगर बात है कि वो एक कम्युनिटी ने लिखा या कहीं पर उनके 100 पुत्रों ने लिखा, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक लिखा हुआ शास्त्र है जिसके अंदर विधि बताई गई है कि किस तरह से नाटक किया जाता है। और जैसा कि शिर्के जी ने अपने संबोधन में और अपने डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाया कि उसमें कुछ मुद्राएं हैं और हर मुद्रा कुछ ना कुछ बखान करती है, कुछ ना कुछ कहती है। तो नाट्य शास्त्र में, नृत्य में जब हम उसका अभिनय करते हैं तो हम उसमें बंधे हुए हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि क्लासिकल संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, तो उसके अंदर सुर हैं, आरोह है, अवरोह है, उसका एक निश्चित क्रम है। तो ये एक शास्त्र हुआ। दूसरा जो है, एक अरस्तु नाम के व्यक्ति हुए हैं यूनान के, ग्रीस में। उन्होंने नाटक को लेकर के एक ग्रंथ लिखा जिसको पोएटिक्स बोलते हैं। तो उसके अंदर अभिनय की बात उन्होंने नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो नाटक होता है, और नाटक के लिए 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके अंदर कंटिन्यूटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन, इन तीनों का जो है वो उसके अंदर समन्वय होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप में मास मीडिया में कुछ लिटरेचर के विद्यार्थी होंगे, नहीं भी होंगे तो कुछ सिनेमा में उन चीज़ों का हुआ है। एडिपस जैसे कि एक नाटक है और एडिपस के ऊपर शायद कुछ फिल्में भी बनी हो, तो उसके अंदर जो कार्य व्यापार होता है वो एक निश्चित समय में होता है और शाम तक चलता है। तो आप वहाँ पर भी बने हो, लेकिन धीरे धीरे इन शास्त्रों से लेकर के जो एक मूल बात नाट्य शास्त्र में कही गई है, अभिनय के 4 प्रकार, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। उसी को लेकर के वेस्ट के अंदर भी अभिनय पद्धतियाँ, मेथड ऑफ एक्टिंग, पद्धतियाँ, शास्त्र नहीं, वो पद्धतियाँ विकसित हुई, जिसमें से स्टेनिस्लावस्की और जैसे भरत मुनि के 100 पुत्र हैं तो स्टेनिस्लावस्की के भी काफ़ी चेले रहे। तो उन सब ने मिलकर के एक अभिनय पद्धति को आगे बढ़ाया जिसको हम आज मेथड एक्टिंग के नाम से जानते हैं। तो मेथड एक्टिंग के अंदर भी अगर हम घुमा फिरा करके देखें तो सारे अभिनय के अंदर एक तो एक्शन या आंगिक, उससे आप बात होगा जो राजश्री जी ने समझाया कि आप जो भी मूवमेंट करते हैं तो अपनी बात कहने के लिए आपको कोई ना कोई एक्शन करना पड़ेगा, और वो एक्शन कहाँ से डिक्टेट होगा, जो आपका टेक्स्ट होगा, जो आपकी स्क्रिप्ट होगी, या जो आपको निर्देशक ने एक स्क्रिप्ट दिया गया कि भैया ये बोलना है, भाई मुझे पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है, तो आप इसके लिए कुछ ना कुछ कार्य व्यापार तो करेंगे ना। खाली रेडियो नाटक तो नहीं है या रेडियो अभिनय तो नहीं है, वो तो दर्शक देखने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड कार्य व्यापार क्या होगा, वो एक्शन क्या होगा, वो अभिनेता खोजता है। तो ये फिजिकल एक्शन की बात होगी। दूसरा, जैसे पवार जी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे सुर बदलते हैं, ये बदलते हैं, उसके अंदर वाचिक का भी उन्होंने उदाहरण दिया और आंगिक का भी उदाहरण दिया। इसी तरह मेथड एक्टिंग में भी जो कुछ शब्द हैं मैं उनका आपको उदाहरण देता हूँ।
एक शब्द है ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करते हैं, आप अपने आसपास समाज में लोगों को देखते हैं, चरित्रों को देखते हैं। जब आप ऐसे ही सड़क पे जाएंगे तो आपको कोई अंधा मिल गया, तो ये एक अभिनेता का, जब आप अभिनय के प्रोफेशन में होते हैं तो उसका एक खजाना होता है, उसकी एक दौलत बन जाती है। तो आप जितना ऑब्जर्व करते हैं आपके अंदर उतना ही भंडार इकट्ठा होता जाता है। आपने भिखारी को देखा, आपने डॉक्टर को देखा, आपने नर्स को देखा, आपने अध्यापक को देखा, तो ये किस तरीके से व्यवहार करते हैं, कैसे पोशाक पहनते हैं, जो आहार्य की बात हुई, और किस तरह से उनका अपना होगा। एक अंधा होगा तो अंधे का जो आंगिक होगा, अगर यहाँ अंधेरा करते आप चलें या मान लें तो आपको बहुत धीरे धीरे आपकी गतियाँ होंगी, जो शारीरिक गतियाँ होंगी। लेकिन अगर आप देख सकते हो मुझे वहाँ तक खंबे तक जाना है तो मैं तुरंत चला जाऊँगा। तो जब आप ऐसा अभिनय कर रहे हैं तो आपको वो शारीरिक गतियाँ देखनी पड़ेंगी। आपका जो भंडार है, जहाँ आपने सामान इकट्ठे किए हुए हैं कि तो ये तरह तरह के चरित्र हैं, वो चरित्र किन परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं, तो जब ये खजाना होता है तो आप उसको निकाल पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण शब्द है जो खासतौर से बच्चों के लिए, बाकी तो सब अग्रज हैं, उनको ये सारी चीज़ें तो सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए एक चीज़ ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया ये खजाना आपका इकट्ठा होता जाता है, ऐसे ही एक शब्द है इमोशनल मेमोरी। भाई मेरे एक अभिनय है, मुझे करना है कि मेरे किसी गरीब रिश्तेदार की मृत्यु हो गई और मुझे शोक प्रकट करना है, आंसू लाने हैं, तो वो तभी ला पाएंगे जब आपके अंदर उसका कहीं भंडार होगा, आपके मस्तिष्क में कहीं छुपी हुई चीज़ होगी। कभी आप रोए होंगे, वो कैसा दुख होगा जब आप किसी गरीब रिश्तेदार की मृत्यु पर गए और रो रहे हैं, वो कहाँ से आएगा? वो वहाँ से आएगा जब आपने कभी अपने जीवन में ऐसा व्यवहार किया हो, आप किसी रिश्तेदार की मृत्यु पे गए हों और आपने देखा हो, वो दुख महसूस किया हो, या वो उसका ऐसा दुख महसूस हुआ हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको कहीं चोट लगी हो, चोट लगने से आपको दुख हुआ हो, दर्द हुआ हो, आपकी कोई प्रिय वस्तु, कोई बहुत प्यारी चीज़ है, वो किसी ने आपसे छीन ली, बहुत अच्छा खिलौना है, तो आपके माता जी ने छीन लिया, आपके दोस्त ने छीन लिया, तो उस खिलौने के छीनने पर आप जो रोए, तो क्या वैसी भावना को आप इस समय पर उपयोग कर सकते हैं? तो ये एक अभिनेता के तौर पे, एक चतुर अभिनेता के तौर पे आपको अपने आप को देखना होता है। इसको हम बोलते हैं एक शब्द में इमोशनल मेमोरी। तो ये भी उसी अभिनय पद्धति या मेथड एक्टिंग का एक तरीका है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आती चली जाती हैं और ये एक पद्धति बनती चली जाती है। जैसे कि अभी फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के मेरे काफ़ी अग्रज बैठे हुए हैं और NYFA, और आजकल तो चलन है क्योंकि आप मास मीडिया के लोग हैं, तो सिनेमा अभिनय, सिनेमा में कैसे अभिनय करेंगे या क्या करेंगे, तो उसका भी जो मूल मंत्र है वो थिएटर ही है। थिएटर का जो अभिनय है या अभिनय हमने जो सीखा है, वहीं से वो सारी चीज़ें निकली हैं, वहीं से वो वाचिक है, वहीं से वो संवाद निकले हैं, वहीं से आपका आंगिक अभिनय की जो मैंने बातें की, इमोशनल मेमोरी, तमाम चीज़ें वही हैं। मंच पर आप प्रस्तुति करते हैं, सिनेमा अभिनय में क्या होता है कि उसका भी थोड़े से तकनीक, थोड़े से टूल बदल जाते हैं। यहाँ पर इस संदर्भ में मैं एक और बात कह दूँ, जैसे कि पवार साहब ने उद्बोधन किया कि मैं माइक के साथ बोल रहा हूँ, ये सुविधा है, ये एक यंत्र है मेरे पास, तो यंत्र के साथ मैं बोल रहा हूँ। लेकिन शास्त्रों में, नाट्य शास्त्र में भी रंगशालाओं का, जगह का एक विवरण दिया गया है। वो छोटी हैं, बड़ी हैं, एक प्रेक्षागृह बहुत बड़ा है, एक प्रेक्षागृह बहुत छोटा है, तो उसके हिसाब से आप अपनी आवाज़ का, जिसको शब्द हम बोलते हैं प्रोजेक्शन या वॉल्यूम बढ़ाना, ये तमाम चीज़ें हैं। तो पिच है, पिच को समझ सकते हैं हम सुर पे। हर एक बार तो मैं एक तरीके से नहीं बोलूँगा। अगर मुझे बोलना भाई कहाँ जा रहे हो, तो पास में है। अगर मैं आपको बोलूँ अरे भाई कहाँ जा रहे हो, तो मेरा जो सुर होगा वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। ये पिच के अंदर एक बदलाव होगा। तो इन सारी चीज़ों का भी वर्णन है। तो रंगशाला के हिसाब से, रंगशाला के जो साइज़ है उसके हिसाब से आपका कितना वॉल्यूम होगा,
आप कितना ज़ोर से बोलेंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सिनेमा में क्या होता है, जिस तरह से मैं यंत्र पर बोल रहा हूँ तो वो एक रिकॉर्डेड आवाज़ होती है और सिनेमा के अभिनय में मंच पर तो नहीं होता, तो इसलिए मंच की जो आपकी ट्रेनिंग होती है, थिएटर की एक ट्रेनिंग होती है, वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि मंच पर आप जो कर गए वो कर गए, वो दोबारा रीटेक नहीं होगा। लेकिन सिनेमा में आप क्या कर रहे हैं कि सिनेमा में आपके रीटेक हैं, एक टेक अच्छा नहीं हुआ तो अच्छा हो गया, और बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है कि कैमरा की रेस्ट्रिक्शन है, आपका एक निश्चित फ्रेम है, आपको फ्रेम के अनुसार अभिनय करना है, आपको ये देखना है कि वो एक वाइड शॉट है या एक क्लोज शॉट है, तो कितना आप मैग्नीफाई करेंगे अपने एक्सप्रेशन, आप अपनी आँखों को कितना फाड़ देंगे। आश्चर्य की बात है, अरे ये क्या हो गया, बहुत आपने आँखें फाड़ी। तो अगर कैमरा में जब क्लोजअप है वो फाड़ेंगे तो बड़ा हास्यास्पद लगेगा। तो वो सारी चीज़ों के लिए निर्देशक आपके सामने होता है, जो मॉनिटर पे देख रहे होते हैं, तो वीडियो पे आ गया तो ये सारी चीज़ें आपको तुरंत दिखाई दे जाती हैं। तो आप निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा शॉट सही है और अभिनेता कैसा है, तो उसको ब्रीफ करते हैं कि थोड़ा सा कम करो। ये हमारी जो अभिनय पद्धति मंच की है, उसके अंदर भी हम बोलते हैं कि मेलो ड्रामा हो गया, थोड़ा सा लाउड हो गया, जो पवार जी ने भी थोड़ा सा अपने संबोधन में बात किया, या अंडर प्ले करना है, भाई मेरे पास में बैठे हुए आकाश जी कहाँ जा रहे हैं, तो मेरी आवाज़ में फर्क होगा, आकाश जी मेरे नज़दीक बैठे हैं, अरे मित्र काली कमीज वाले भाई, तो आवाज़ भी बदलेगी, पिच बदलेगी, सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें भी सिनेमा की एक्टिंग में बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप एक यंत्र के ऊपर बोल रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ की डेप्थ कितनी होगी, आप जो संबोधन कर रहे हैं या आप डायलॉग बोल रहे हैं वो कितना ज़ोर से बोलेंगे, किस पिच पे बोलेंगे, आप बेस पे बोलेंगे, जैसे साथ सुन रहे हैं सारे गामा पाधा निसा, तो आप नीचे से लेकर के यहाँ तक भी बोलते हैं, तो आपके जो आसपास के चरित्र हैं आपको देखना होगा वो किस पिच पे बोलता है, किस तरीके से बातचीत करता है। अध्यापकगण सारे एक जैसे तो होंगे नहीं, हर एक का बोलने का तरीका एक अलग होगा, तो ये सारे भंडार आपके अंदर हो जाते हैं। तो ये अभिनय पद्धति की बात है। अगर समय हो तो अभी तक क्या हुआ कि हम वेस्ट की बहुत नकल करते रहे, अपने नाट्य शास्त्र को लेकर के अगर आगे बढ़ते, और हमारे सामने पोला देशपांडे जी का जिक्र किया पवार साहब ने, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि अपने अनुभव को एक पुस्तक का रूप दे दिया, वो एक पद्धति बन गई है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो जो अभिनेता 30 वर्ष 40 वर्ष काम करते हैं, जो निर्देशक काम करते हैं, उनको पुस्तक लिखनी चाहिए। वेस्ट में 30 दिन की भी अगर कोई एक नाट्य कार्यशाला होती है या रंग शिविर होता है, वो 1 महीने के बाद एक पुस्तक के रूप में आ जाता है। हम रंग कार्यशालाओं में थिएटर गेम खेलते हैं। थिएटर गेम हमारे झिझक दूर करने के लिए कुछ थिएटर गेम्स होते हैं कि चलो भाई टच गेम। अब जब हम अभिनय करना चाहते हैं तो कुछ झिझक होती है, जैसे कि हमारे यहाँ जेंडर को लेकर के बड़ी झिझक होती है, स्त्री है पुरुष है, मैं ऐसे नहीं छू सकता, ऐसे नहीं छू सकता, यहाँ नहीं। तो इसको दूर करने के लिए आप कुछ खेल खेलते हैं। जब अभिनय की ट्रेनिंग की बात होती है तो वहाँ जो खेल खेले गए उसको तुरंत एक पुस्तक के अंदर निकाल करके रख दिया गया। 101 अभिनय के खेल, ये झिझक दूर करने के लिए है, ये विश्वास के लिए है। अब अभिनय में बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेरे साथ वो एक्टर है और मैं एक ऐसा रोल कर रहा हूँ कि मेरे पीछे कोई सबॉर्डिनेट आदमी खड़ा है, तो मुझे अपने संवाद पे एक टाइमिंग के साथ उससे बोलना है, मेरे पेन देना, उसने पेन दिया और मैंने पेन लेकर के आगे काम शुरू कर दिया। तो मुझे भी मालूम है कि वो व्यक्ति मेरे पास खड़ा होगा, कहाँ देगा, अरे भाई देना, फेंकना बॉल, और अगर वो मूड में नहीं है तो बॉल फेंकी वहाँ चली गई। तो ये आपस में जो अभिनेता होते हैं, सह अभिनेता होते हैं, उनका आपस में एक ट्रस्ट गेम होता है। ट्रस्ट गेम, आपके ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। भाई आप तो मूड में आ गए, लेकिन नाटककार ने तो एक स्क्रिप्ट लिखी है ना, उसके अंदर एक संवाद आपका है, एक संवाद उसका है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है क्यों देना। भाई आप अपना संवाद बोलोगे, उसके बाद आपका ये संवाद है तब मैं बोलूँगा। मैंने अपना संवाद बोल दिया, राम रावण है, राम रावण का अभिनय हो रहा है। राम ने कहा, हे देख रावण, तू बहुत अत्याचार कर चुका है, अब तेरे अत्याचार नहीं सहेंगे, अब तो तेरा अंत होना ही है। तो रावण महाशय अपना जो पवार जी ने कहा कहीं और सोच रहे हैं, वो भूल गए। अब
राम बेचारे क्या करेंगे? तो वो तो संवाद तो जब होगा जब रावण को जवाब देगा तब वो प्रत्युत्तर होता है। तो ये क्यों जो हमारी बात है, जो लेन देन है अभिनेताओं का आपस में, बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए हम विश्वास सह अभिनेताओं के ऊपर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे थिएटर गेम्स में हैं, नाटक के जरिए हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं और धीरे धीरे एक पद्धति बन गई। इसी तरह अब हाल ही में एक नई किताब आई है, कर्नाटक के एक निर्देशक हैं, अभिनेता हैं प्रसन्ना, उन्होंने एक किताब लिखी है, मेथड ऑफ इंडियन एक्टिंग। तो जैसा कि जिक्र आ रहा था या सुना था कि अभिनेता हम कैसे हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में हम किस तरीके से करते हैं, जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा क्लासिकल उसमें भी होती है, गुरु ने जो सीखा है वो अपने आगे बच्चों को दिया है। इसी तरह मंच पर कोई शास्त्र या ये देख करके नहीं, निर्देशक के ज़रिए हम जाते हैं, शुरू में बैठते हैं, प्रॉम्प्टिंग करते हैं, स्क्रिप्ट हमारे हाथ में पढ़ा दी गई कि ये भाई स्क्रिप्ट है, आप दूसरे के संवाद बोलो। कोई हीरो है, अरे मुझे हीरो की प्रॉम्प्टिंग करनी है भैया, बड़ा महत्वपूर्ण काम है, तो मैं उनको लाइन दे रहा हूँ कि आपकी लाइन, हे प्रभु, वो भी बोल रहा है हे प्रभु मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। तो ये प्रॉम्प्टिंग एक पीछे से, पर्दे के पीछे से जो है कि आप इसको प्रॉम्प्ट करते रहें, इससे प्रॉम्प्टिंग से शुरुआत होती है। फिर प्रॉक्सी कर लेना, जो आप लोग हैं कि कभी कोई अभिनेता नहीं आया और पूरी रिहर्सल चल रही है, तो पूरा नाटक तो तभी होगा ना जब अगर 15 अभिनेता हैं, उसके अंदर 15 अभिनेता आएंगे तब वो अभिनय आगे चलेगा। किसी दिन उसमें से एक खिसक गया तो उसके बिना कैसे होगा? तो वो जो नया प्रशिक्षु होता है या नया स्टूडेंट होता है तो उसको स्क्रिप्ट दे दी, भाई तुम स्क्रिप्ट लेकर के आज ये इनका डायलॉग बोलो, कम से कम जो मैंने क्यों की बात करी वो क्यों नहीं मिलेगी तो आगे नाटक नहीं चलेगा। तो उसका काम ये हो गया कि आप क्यों देते रहिए, नाटक आगे चलता रहे। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करते हैं, फिर आपको एक छोटा रोल मिला तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। आपको 5, 7, 10 साल में थोड़ा स्टेज पर, मंच पर चलना सीखते हैं, ये करना सीखते हैं। तो अपनी अपनी सोच है। आजकल तो ये हो गया स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आ गई तो मैं अब तो मेन रोल ही करूँगा, मैं तो अभिनेता करूँगा। बहुत सारे लोग हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी हो जाती है, बहुत अच्छा नाम होता है, फिर भी एक शब्द, एक चीज़ हम कभी नहीं भूलते कि हम अभी भी विद्यार्थी हैं, हमें अभी भी बहुत सीखना है। आप जो बैठे हुए हैं, जो मैंने कहा कि आपका एक अभिनेता का भंडार होता है, हो सकता है कि आप एक अलग तरीके से आप गर्दन हिला रहे हैं या आप एक अलग तरीके से कुछ बातचीत करते हैं, आपका लहजा एक अलग है, आपकी एक शैली अलग है, तो मैं उससे भी क्या लेता हूँ। तो ये गिव एंड टेक सोसाइटी से अभिनेता का लगातार चलता रहता है। लेकिन ये सारी चीज़ें पद्धति हैं, अभिनय पद्धति हैं। इस अभिनय पद्धति को नाट्य शास्त्र से कभी रिलेट नहीं किया गया, लेकिन मेरे विचार में नाट्य शास्त्र में जो वर्णित चीज़ें हैं, जो अभिनय के 4 प्रकार बताए, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, सात्विक इंटरनल। तो आजकल की अभिनय पद्धति के अंदर भी अगर मैं फील नहीं करूँगा, मैं अंदर से महसूस नहीं करूँगा और एक रोने का दृश्य में मुझे करना है तो मेरे आंसू कैसे आएंगे? तो उसके लिए मैंने जिस बात का इशारा किया है कि इमोशनल मेमोरी होती है, अरे यार मेरा वो खिलौना छीन गया था तो उस वक्त मैं फूट फूट के रोया था, तो मैं उसको रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ, उस इमोशनल मेमोरी को दोबारा से सोचता हूँ। तो उसको सोचने से वो जो भाव है वो मेरे अंदर से आता है, और जब आप इसका रियाज करके आप इसके ऊपर पूरा अपना एक कमांड कर लेते हैं तो आप अपनी इच्छा से उसको रिकॉल करके आंसू निकाल सकते हैं। भाई आज मैं आया, मैं अभिनेता हूँ, मैं तो बड़े दुखी मूड में हो गया, सुबह सुबह एक एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, मेरी गाड़ी पूरी तरह से पिछड़ गई, अब एक्टिंग तो करनी है यार, मेरे को बहुत हंसी वाली। तो वो सब भूल करके आप किस तरीके से करेंगे? तो उसके अंदर भी वो चीज़ें हैं कि मेरे को ऐसा कोई जिसके ऊपर मेरे को बहुत हंसी आई। तो ये तमाम चीज़ें हैं और बहुत वृहद विषय है। भाई आकाश ने जो मुझे बुलाया और इस विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके बाद मेरे ध्यान में ये बात आती है कि अभी तक आंगिक वाचिक आहार्य को लेकर एक हिंदुस्तानी नज़रिया, एक हिंदुस्तानी शैली का कोई नहीं बना, सिवाय इसके जिस किताब का मैंने जिक्र किया प्रसन्ना जी की, जो लिखित रूप में आई है, वो इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग। तो इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरी है। और सिनेमा के अंदर तो FTII या न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में भी जो पहले साल का कोर्स है उसके अंदर थिएटर एक्टिंग से ही आप शुरुआत करते हैं।
और वहाँ पर जो तकनीकें बदल जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पर साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, तो एक जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग करते हुए उसकी आवाज़ का पर्सपेक्टिव अभिनेता भी अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर उनका भी काम है। और चूंकि ये तकनीकी है, तकनीक ज़्यादा है सिनेमा के अंदर, तो अभिनेता को उस तकनीक का भी ध्यान रखना होगा। अभी सभागार के अंदर सब चुप हैं और फवाद साहब ने कहा थोड़े से पंखे बंद करवा दीजिए, तो 2-4 फिर चल गए। तो लेकिन वो हमारी जो एकाग्रता है उसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरा एक जो चीज़ है एकाग्रता, कंसंट्रेशन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जितने संस्कार या जितना सीखा हुआ अभिनेता होता है उतनी ही सीखी हुई दर्शकगण भी होते हैं। और ख़ासतौर से जो क्लासिकल शैली है उसके अंदर आपको समझ होनी चाहिए कि पताका क्या है, मुद्राख्या क्या है, कटको क्या है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो किस तरह की भावभंगिमा है, कहना क्या चाह रहा है। तो इसी तरह जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो सिनेमा के अंदर एक अलग तरीके के कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, खासतौर से मास मीडिया के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि वहाँ फ्लोर के ऊपर ऑडियंस चुप बैठ करके आपको 1 घंटे नहीं सुन रही है। वहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, कोई अपना ट्रैक बिछा रहा है, कोई अपना कुछ कैमरा कर रहा है, कोई लाइट फोकस कर रहा है, और उसके ऊपर भी एक्शन, कट, टेक, और बार बार आप अपना रीटेक के ऊपर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर थोड़े से कंसंट्रेशन की और आपको ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में भी आप किस तरीके से कंसंट्रेशन कर पाए। काफ़ी किताबें आ रही हैं, सिनेमा के अभिनय पे भी काफ़ी किताबें आ रही हैं, लिखी जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से अभी कुछ लिखना बाकी है। और जो लोग लिख चुके या एक उम्र के एक पड़ाव पर हैं वो कुछ काम कर सकते हैं। और जब अपने अपने अनुभव, हम लोग जो काम करने वाले हैं, हमारे 40 साल के अनुभव, 50 साल के अनुभव में मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूँ कि हम सब ने पता नहीं कितनी बसंत देखी है, हरीश जी ने इतनी बसंत देखी है, आप सब एक लिविंग लेजेंड हैं सिनेमा के निर्देशन में, एडिटिंग में, आपने इतना चीज़ें देखा है। लेकिन उस सब को लेकर के क्यों सिर्फ एक पूरी नाट्य विधा की हम बात करें, क्यों हम एक वॉइसिंग की बात ना करें जिसके अंदर उच्चारण, डिक्शन का कितना महत्व है। अभी भी आप क्या करते हैं, सर पीट लेते हैं जब आप जाते हैं स्टूडियो के अंदर, किसी का उच्चारण ठीक नहीं है, शब्द आपको सुनाई नहीं देते, तो उसके लिए क्या अभ्यास प्रक्रिया होगी, क्या अभ्यास होंगे। ऐसी पुस्तकें हमारे ऊपर आए, निर्देशन और अभिनय का संबंध सिनेमा में क्या है, ऐसी पुस्तक हमारे सामने आए, और ये समय निकालने की या किसी शिष्य को पकड़ के लिखवाने वाली बातें हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बहस छिड़ी है, आकाश जी ने ये बहस छिड़ी, पहले तो मुझे लगता है कि इनका साधुवाद, और ये बहुत विषय है। और इस तरह की चीज़ें लारा कॉलेज और दूसरे अन्य कॉलेज, आकाश जी, शिर्के जी, हम भी कोशिश करेंगे कि इस तरह की गोष्ठियाँ हों, आधे घंटे की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, या बातचीत हो, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो। आकाश जी से मेरी प्रार्थना है, उनका बिग बैंग थिएटर इतने अच्छे सालों से काम कर रहा है, मैं खुद 4-5 साल से उनसे परिचित हूँ, अलग अलग कमिटीज़ में हमारा परिचय हुआ, मिलना जुलना हुआ। तो अब ये ऑनलाइन जो चीज़ें हुई हैं, कम से कम एक बातचीत, एक संवाद, एक प्लेटफॉर्म बने। मुझे बड़ी खुशी हुई जब राजश्री जी ने बताया कि हमारा एक ग्रुप है, तो जो भी एडमिन है मैं चाहूँगा कि मुझे भी उस ग्रुप में जोड़ा जाए, ताकि मुझे भी अच्छी अच्छी कविताएँ पढ़ने को मिलें, सुनने को मिलें। अगर उसके अंदर कुछ वीडियो क्लिपिंग है, वो चीज़ें सब उससे परिचय हो। और इन सब चीज़ों के बाद जो मैंने कहा कि तमाम अग्रजों के सामने हम क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को अपने काम के लिए आने वाले, उसके लिए हम थोड़ी सी दिशा दे पाएँ, तो इस सेमिनार का वही मकसद है। तो अगर फिर भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम छू करके निकल गए हैं, अगर आकाश जी ने जिस तरह से संचालित करना हो, अगर इसको लेकर के किसी विषय पर भी आपके सवाल हो, तो मैं इसके लिए पूरा ओपन हूँ। और कुछ बातचीत हो या आगे की चीज़ें हो, तो आप सभी जिस मर्जी माध्यम के साथ हमारा जो होगा उसके साथ हम जुड़ें और आगे बढ़ें, रंगमंच आगे बढ़े। अभिनय जिंदाबाद, रंगमंच जिंदाबाद, महाराष्ट्र जिंदाबाद। धन्यवाद बहुत बहुत। अभी जो आखिरी पड़ाव होता है, जैसे कहते हैं वोट ऑफ थैंक्स, उस पर आने से पहले मैंने शुरू में बिग बैंग थिएटर फाउंडेशन का जो है परिचय तो दे दिया, मगर आपको आकाश आदित्य लामा जी का परिचय नहीं दिया।
आकाश दीक्षित रामा जी ने जो है अपने जीवन का सफ़र जो है फिल्मी सफ़र जो शुरू किया था गदर फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में, और उसके बाद राशि के न जाने तू रहने वाली महलों की और न जाने कितने सारे सीरियल थे जिसके उन्होंने संवाद लिखे, मतलब हज़ारों में है जो कि एपिसोड्स जो है वो लिखे हैं। झिलमिल सितारों का लिखा था राष्ट्रीय पुरस्कार और प्यार के दो नाम एक रहा था एक श्याम। 3000 एपिसोड के आसपास मेरे कोर्सेस भारत में इंडोनेशिया में 3000 एपिसोड, ये मुझे कितना मतलब उन्होंने वो काम किया। और प्लस अभी जब हमारी तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर मुलाकात का सिलसिला ये था कि वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनकी फिल्म दिखाई गई थी नानी तेरी मोरनी जो है वो वहाँ दिखाई गई, और जो इनकी अगली फिल्म आ रही है अमीषा पटेल के साथ तौबा तेरा जलवा वो है। मतलब ये लेखक हैं, निर्देशक हैं, मंच के कलाकार हैं और न जाने क्या क्या। मंच पे कलाकार ऐसा होता है कि जब बिग बैंग थिएटर में मेरे पास कोई एक्टर नहीं होते, सब छुट्टी में भाग जाते हैं, तो मुझे एक्टिंग करनी पड़ती है। या राजश्री शिर्के जी जैसे कोई है ज़बरदस्ती पकड़ के बोला चलो कृष्ण करो तुम ही करोगे, तो मुझे करना पड़ता। वैसे मैं लेखक और निर्देशक ही हूँ बोलता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप लोग आए। और हम चाहते थे कि ये सेशन थोड़ा और लंबा हो। सर एक मिनट, सॉरी एक ज़रूरी सूचना, फीडबैक फॉर्म आपको दिया गया है, फीडबैक फॉर्म भरकर ही जाइए। थैंक यू, सॉरी सर। तो हम चाहते थे ये सेशन और बड़ा हो। अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर मधुकर सर ने अगर हमें अलाउ किया, चेतन जी ने कहा, और हमारे जो सुरेश सर है और अपना राशि जी है, चेतन जी हैं, और भी जो है हमारे स्पीकर्स में भी जो बैठे हैं, इनके भी बहुत अच्छे ऑडियंस पे बैठे हैं, लेकिन ये भी बहुत विद्वान हैं, हम इनको भी सुनते रहते हैं। हम आपस में फिर ऐसी चर्चा हो, मेरी इच्छा है तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। बिग बैंग थिएटर फाउंडेशन आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करेंगे और थोड़ा डिटेल में करेंगे हम लोग। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगा क्लारास कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, जिन्होंने अपना ये वेन्यू हमें प्रोवाइड किया, और हमारे आपके प्रिंसिपल मधुकर गित्ते सर, आपके श्री अजय कौर जी जनरल सेक्रेटरी CWC ट्रस्ट, श्री प्रशांत काशिप जी एक्टिविटी चेयरमैन, प्रमोद पवार जी, वो अपना बहुत शूटिंग में उनको पुणे जाना था लेकिन वो फिर भी समय निकाल के हमारे बीच में आए। श्रीमती राशि शिर्के जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमेशा से स्नेह मिलता रहता है हमें। प्रोफेसर सुरेश भारद्वाज जी, सर आज पहली बार आए लेकिन हमें मालूम है इसके बाद आपको हमें हमारे यहाँ बार बार आना होगा बिग बैंग थिएटर फाउंडेशन में। और डॉक्टर हरीश भिवानी जी, नेशन फर्स्ट कलेक्टिव के भी प्रेसिडेंट है और समय है, हम सबके गाइडेंस है। मतलब आयु में ये मेरे पिता से भी शायद आस पास होंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मित्र जैसे हैं हमारे ये हरीश जी, सबसे युवा व्यक्ति हमारे बीच में। तो हरीश भिवानी जी, विनोद गनात्रा जी, सुभाष सहगल जी, सुभाष साहू जी, पोदार जी, राजेश सेठी जी, सुभाष सहगल जी, सुभाष छेड़ा जी, विजय पांडे जी, राजेश सेठी जी, श्री प्रकाश मेनन जी और अनिरुद्ध शिर्के जी, जिन्होंने अगर आपने सुना होगा राशि जी जब परफॉर्म कर रही थी उन्होंने अपनी आवाज़ दी। वो बहुत ही जाने माने बहुत अच्छे गायक हैं और इंस्ट्रूमेंट में तो उनका बहुत नाम है इस समय देश में। जो युवा, उनके लिए भी एक अलग से सेशन करना चाहिए हमें। अनिरुद्ध शिर्के जी, संजय शिर्के जी, जो अनिरुद्ध जी के पिताजी हैं, मास्टर जी के बेटर हाफ है, ऐसे ही कहूँगा क्योंकि हमारे लिए हमेशा संबंध है, मेरे पिता तो ये है। और जो है पूरी बिग बैंग थिएटर फाउंडेशन जो मेरी टीम है पूरी, उन्होंने भी कई दिनों से इस पर बहुत मेहनत की है, दिन रात इस पर आए, इस पर मेरे साथ लगे रहे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे चेतन माथुर जी, जो हमेशा जिनका बिग बैंग को बड़ा सपोर्ट रहता है और उनकी वजह से आज ये कार्यक्रम हो पाया एक तरह से। तो चेतन जी के लिए एक जोरदार तालियां। और सुभाष साहू जी से मैं निवेदन करूंगा कि चेतन जी का एक स्वागत किया जाए। हालांकि स्वागत तो पहले किया जाता, लेकिन हम चाहते थे कि चेतन जी को, मेरी इच्छा थी कि हम सम्मानित के जो योगदान है उसको
हाँ बीच में बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी। अगर आपको और कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। तो बाकी जो है अगले बार हमारे आप लोगों से मुझे मालूम है आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहे होंगे, क्वेश्चंस रहे होंगे जो आप पूछना चाहते थे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज समय की थोड़ी कमी है, हम फिर से आप लोगों के बीच में आए और कुछ आप लोगों के जो सवाल है वो भी हम इंटरेक्ट करें, आपसे बातचीत करें, क्योंकि हमें सबसे अच्छा वही लगता है आप लोगों से बातचीत करना। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू एवरीवन। Everybody, please rise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की बिग बैंग थिएटर्स के सब आ जाइए फोटोग्राफ्स के लिए हमारे ग्रुप